other हाँ छुआ दिमाग तक दे भी दस्या उन्हें Assalamu alaikum, students. Yes, Anas. Nothing? Okay. I think we have studied up to defining relationships by punctuation. And now I would like to put some questions to you people so that I may get the idea what understanding you have developed so far. Yes, what's meant by irreversibility of communication?
Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Yes, Shamroz. Irreversibility of communication means once you have been said cannot be retrieved or called back. Very good. To retrieve this It adverse means effect, what's been done is done. What's done yes, is done. अब ये it's नहीं done. हो सकता कि अगर आप ये कहें कि मैंने कहा नहीं या मैंने ये एक्ट किया नहीं, नहीं. We- Whatever you have communicated, it can never get uncommunicated. It's done. Yes, sir. Okay. And But there yes. is a solution What's the solution? to reduce the adverse effect on another communicator. We can apologize or we can just adding joking. Okay, very good. Okay, anyone else? What is inevitability of communication? What is meant by inevitability of communication? Yes, Shamroz. Inevitability of communication means that you can never say that you can't communicate. You can never say that you didn't communicate. Okay, Yes, it simply means one cannot not communicate. okay. And there was one thing more. The absence of a message is a message in itself. a message in itself. So whenever you say that I didn't speak, that's right. It's valid. You can say that I didn't speak. I didn't write, but you can never say that I didn't communicate. So if you don't speak, you might have remained silent in some situation, but you can never say that you didn't give even a single message. Maybe you've given a lot of messages by your silence. Okay. और ये जो था इसमें content dimension. What's meant by the dimension of content in communication? Yes, Shamroz. Means Content of- dimension of communication. yes, sir. Can I speak, sir? Yeah, sure. Content of dimension of communication means that there is understanding between differences in the nature of two communicators or more. No, you are If actually they- telling about the relationship dimension of communication. The question is about the content dimension of communication. What is the content there? What's the role of content? Means that how we are frank with another communicator. Again, please. Content means are simply हम दूसरे communicator के साथ कितने frank हैं, हम friendly हैं कि No, नहीं। this is not the content. Content is something else. Content is actually the subject matter. Okay. Okay. So whenever you are talking to someone, the content will surely affect your communication. If it is a matter of interest for your receiver, your communication is likely to get effective. But if it's not a matter of interest for your receiver, maybe the communication fails. Okay. Please, sir, can you give us an example? Like as I'm talking to you, you are listening to me just because of business communication. But if I start telling you about the things that I like, maybe you don't get interested in such things because this is the class of business communication. You might get the idea that you are sparing time for learning, not for the stories that I've got in my life. So this content will fail the communication that's happening between two of us. Okay, sir. Okay, then today we are to start with the symmetric or complementary. ये भी एक एक्सियम है कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन को हमने ये देखना है कि इक्वल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों पार्टीज का या डिफरेंट है. जैसे symmetrical interaction describes interaction based on equal power between the parties. अगर पावर दोनों की सेम है
पावर दोनों की सेम कैसे होती है? जैसे दोनों मैनेजर्स एक ही लेवल के, एक रैंक के दोनों मैनेजर्स हों, तो इसका मतलब इनकी, अब देखें जैसे हमने इसके अंदर आ जाएगा कि एक मैनेजर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का, एक इंपोर्ट डिपार्टमेंट का, दोनों की पावर तो सेम ही, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन कहते हैं कि सिमेट्री है, दोनों की पावर सेम है। कॉन्वर्सली होता ऑन द अदर हैंड, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरचेंज डिस्क्राइब्स इंटरेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन पावर बिटवीन पार्टीज। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरचेंज है वो क्या है कि आप जब एक दूसरे से बात करेंगे, आपकी पावर उतनी नहीं है जितनी दूसरे पर्सन की। लाइक आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, वो मैनेजर है, आप एम्प्लॉई हैं, मैनेजर और एम्प्लॉई की पावर सेम नहीं हो सकती। इस वजह से जब ये कम्युनिकेशन होगी तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ये पीछे भी वर्ड गुजरा था, पता नहीं गुजरा था या नहीं, मेरा हाल आगे आएगा अभी। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं जो कंप्लीट करने वाले होते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग डिसिमिलर भी है। डिसिमिलर, जो सिमिलर ना हो, अनइक्वल पावर्स जहां पे आ जाती हैं वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं। फिर आप देखें अनइक्वल पावर्स कैसे हैं कि एक एम्प्लॉय एक मैनेजर, ये तो पावर का डिफरेंस आ गया, दोनों की पावर सेम नहीं है। इनकी जो कम्युनिकेशन होगी उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन। सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, वो बराबर नहीं है। दिस कुड बी रीफ्रेज्ड एज सेइंग communication is either symmetric or complementary depending on whether the relationship of the parties is based on differences or parity. Difference, parity, parity, equality. Difference जहाँ पे equality नहीं होगी, parity और disparity भी इन्हें हम कहते हैं। parity उसका एंटोनिम parity का disparity। तो इस तरह से अब ये देखना है कि अगर तो दोनों की पावर सेम है तो सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन होगी, और अगर दोनों की पावर्स डिफरेंट होगी तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन कहेंगे। अच्छा, अब इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारा टॉपिक है एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनके बारे में हमने कहा था ये वो चीजें हैं जो कंपोनेंट्स तो नहीं है कि ये कम्युनिकेशन के अंदर ये रूल्स में शामिल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चलना कम्युनिकेशन के साथ है। यानी जब आप अपने मैनेजर के साथ बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन इसमें डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, उसके मुताबिक आपने चलना है कि मैनेजर की बात आपको मानना पड़ेगी। और क्योंकि मैनेजर अपनी अथॉरिटी असर्ट करवाना चाहता है, वो चाहता है कि जो बात मैं करूं उसको लोग माने। इस वजह से ये कम्युनिकेशन जो होती है ये डिस्पैरिटी की बेस पे है। ये इफेक्टिव उसी सूरत में होगी अगर हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पे रहें। अगर हम सिमेट्रिक पे आने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी और हमें लॉस होगा इसका। इसलिए हमने ये देखना है कि जहां कम्युनिकेशन होगी उसमें ये देखना है पावर सेम है या डिफरेंट है। 3 स्टाइल्स हैं इसमें कम्युनिकेशन के। अब जो भी कम्युनिकेटर होता है वो अपनी पावर के मुताबिक ही उसने कम्युनिकेट करना है। वन अप क्या है? वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ एन एक्सचेंज बाय डोमिनेटिंग द ओवरऑल कम्युनिकेशन। अब जो पार्टी डोमिनेट करने की कोशिश करती है, डेफिनेट बात है कि उसके पास पावर होगी। जिसके पास पावर है उसने कोशिश करनी है। ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का कंट्रोल अपने पास। आप अगर सोशल कम्युनिकेशन में इसको देखेंगे तो जैसे आपके अपने फादर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो यही चाहते हैं जो मैं कहूँ कि आगे कोई बोले ना, बस जो कह दिया कह दिया, अब ये माने इसको। ये वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ एन एक्सचेंज बाय डोमिनेटिंग द ओवरऑल कम्युनिकेशन। उन्हें डोमिनेट करना है। मैनेजर इसी तरह से अपने एम्प्लॉइज के सामने है, मैनेजर यही समझता है कि मैंने जो कहना था कह दिया बस। जैसा आप आर्मी में सुनते हैं, कहते हैं ऑर्डर इज ऑर्डर, बस ऑर्डर ऑर्डर ही है, इसमें से और कुछ नहीं निकालना कि ऐसे कर ले वैसे, जो कहा है वही करे बस। वन डाउन, वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू यील्ड कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन और सबमिट टू अनदर पार्टी। इसमें जो वन डाउन है, अब एक पार्टी को पता है कि मेरी पावर ही नहीं है, तो उसमें उसने क्या करना है? यील्ड कंट्रोल, उसने सरेंडर करना है, कंट्रोल छोड़ना है। किस तरह से? गिविंग अप कंट्रोल, कि उसने दूसरे की बात माननी है, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी ऑफ एन इंटरेक्शन, और सबमिट टू अनदर पार्टी। तो इसमें कंट्रोल जो है वो छोड़ जाती है, जो सबमिट कर देती है वो, इन सबमिसिवली अगले जो पार्टी दूसरी होती है उसकी बात को मान लेती है। एंड और तीसरा क्या स्टाइल है? वो है वन अक्रॉस। वन अक्रॉस कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजिएंट स्टेट
where the communication aims to neutralize a situation. अच्छा, अब देखें कि हमने वन अप में कहा कि एक पार्टी वो कंट्रोल गेन करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब क्यों है कि उसके पास पावर है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि जिसके पास पावर है वो हमेशा ऐसे आदमी से उसने कम्युनिकेट करना जिसके पास पावर ना हो, और दूसरे के पास भी पावर हो। तो फिर दो मैनेजर्स जब बात करेंगे तो डेफिनेटली दोनों में पावर तो है उनके पास। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि दोनों पार्टीज अगर अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, डोमिनेट करने की कोशिश करें, तो कम्युनिकेशन की आउटकम क्या होगी? कुछ भी नहीं। ऐसी सूरत में कभी कभी उन्हें अपना स्टाइल फिर चेंज करना पड़ता है। वो क्या, ट्रांजिएंट जो होता है, ट्रांजिएंट ये होता है टेम्पररी। ये टेम्पररी स्टेट है, यानी ये नहीं है कि जैसा वन अप में मैनेजर के पास तो कंट्रोल रहेगा, वन डाउन में एम्प्लॉय के पास कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वन अप में मैनेजर के पास हमेशा होगा, वो तो ठीक है। लेकिन दो मैनेजर्स बात करने लग गए, दो एम्प्लॉयज आपस में बात करने लग गए। अब अगर दोनों मैनेजर्स हैं तो उस सूरत में क्या होगा? फिर एक वन अप पे, दूसरा भी वन अप पे। तो अब एक वन अप पे हो, एक वन डाउन पे हो, फिर तो कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि एक ने चुप करके बात मान ली। लेकिन दोनों ही बात मनवाने पे आ गए। इस सूरत में क्या होगा कि इसमें जो मैनेजर है, एक जो वन अप पे है, वो ये नहीं करेगा कि वो कंट्रोल छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। गिविंग अप कंट्रोल कभी भी नहीं होगा। क्यों? मैनेजर है, वो अपनी पावर तो नहीं छोड़ सकता। इस तरह दूसरा मैनेजर वो भी अपनी पावर नहीं छोड़ेगा। तो अब करेंगे क्या? फिर कैसे पहुंचेंगे किसी आउटकम पे? वन पार्टी अटेम्प्ट is a transient state where the communication aims to neutralize a situation. उसमें थोड़ी देर के लिए आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए। ये नहीं है कि आपने वो मैनेजर वाली अपनी पावर छोड़ दी, कंट्रोल छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात माननी है, वो बात आप मान लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। अच्छा मैनेजर वही है जो कम्युनिकेशन में इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली चलेगी। तो अब इसको, उस डेड लॉक को खत्म करने के लिए फिर ये थोड़ी देर के लिए दूसरे आदमी की बात मान लेते हैं। वो हो सकता है दोनों एक दूसरे की बात मान लें, या एक वन अक्रॉस पे आके थोड़ी देर के लिए दूसरे की बात मान लें और बात कुछ सोल्यूशन सामने आ जाए। where parties adopt the same style, one up one down। ये वन डाउन है, ये वन ओन लिखा हुआ है बुक में, ये डी मिस हुआ है। वन अप वन डाउन और वन अक्रॉस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिमेट्रिकल। जब दो पार्टीज सेम स्टाइल पे कम्युनिकेट करेंगी, जैसे दोनों ही वन अप पे, दो मैनेजर्स, दो एम्प्लॉइज, उस सूरत में ये सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन होगी। फिर एक वन अप पे, एक वन डाउन पे, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और वन अक्रॉस, इसमें इक्वल पावर वाले लोग कुछ देर के लिए दूसरे की बात मानेंगे, कुछ देर के लिए। देखिए वो ट्रांजिएंट स्टेट मैंने वो अंडरलाइन किया है, टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं ऐसा होता। पावर्स वही रहेंगी इनके पास, लेकिन बात को सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए, डेड लॉक को रिमूव करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं। जब ये मानते हैं तो इसका मतलब उन्होंने स्टाइल कौन सा अडॉप्ट किया? वन अक्रॉस का। क्योंकि ना वो वन अप पे रहते हैं उस सूरत में कि अपनी पावर को शो करते रहे वहीं पे, लेकिन वन डाउन पे भी नहीं आते कि वो मैनेजर की बजाय एम्प्लॉय बन जाए, ऐसा भी नहीं होगा। बस थोड़ी देर के लिए बात माननी है, बस स्टाइल चेंज करना है थोड़ी देर के, वो वन अक्रॉस पे है। अगर दोनों पार्टीज वन अक्रॉस पे आ जाए तो उस सूरत में सिमेट्रिकल हो जाएगी। अगर एक वन अप पे रहे, दूसरी वन अक्रॉस पे आई है, थोड़ी देर के लिए उसने बस किया है, उस सूरत में ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन होगी। When parties use opposing styles, it is seen as complementary। जब इनके स्टाइल्स अपोजिंग होंगे इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कि एक वन अप पे, दूसरा वन अक्रॉस पे, वो वन अक्रॉस पे आ जाए, या एक वन अप पे, एक वन डाउन पे। जब ये अपोजिंग स्टाइल्स हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड और बॉस एम्प्लॉय, अब इनकी जो कम्युनिकेशन है आपस में, ये कौन सी है? डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री है। पावर्स का डिफरेंस बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल्स कैन बी हाईली एफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। क्यों? जहाँ पावर्स डिफरेंट होगी तो वहाँ ऑर्डर चल जाएगा, और ऑर्डर की वजह से जल्दी काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द आर्मी। अब आर्मी में देखें, ऊपर से बस ऑर्डर उन्होंने देना है, नीचे तक वो ऑर्डर फॉलो करते जाएंगे। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेज, जिसको वोकैलिक्स भी कहा जाता है। पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू द एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज इट रिलेट्स टू समथिंग अदर देन द वर्ड्स देमसेल्व्स। अच्छा, इसको ये कह रहा है कि पैरा लैंग्वेज, हमने पीछे भी मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल में, पैरा लैंग्वेज वो है जिसमें आपकी वॉइस के साथ इसमें चलना है, लेकिन रहना इसमें नॉन वर्बल है। क्योंकि वर्बल हम सिर्फ उसको मानते हैं जिसमें हम वर्ड्स यूज करें और वर्ड्स के मीनिंग्स पे रहें। वर्ड्स के मीनिंग चाहे वो रिटन में जाएं या ओरल में जाएं, ये वर्बल ही रहती है कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप मीनिंग से हट के किसी और चीज़ पे फोकस कर दिया, कि जैसे लिखे हुए में हम कहते हैं ना कि स्पेलिंग जहाँ पे गलत कर दिए, कैपिटल को स्मॉल कर दिया, स्मॉल कैपिटल कर दिया, पंक्चुएशन में जहाँ फुल स्टॉप लगाना था क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये सारे नॉन वर्बल हैं, हालांकि चल वर्ड्स के साथ ही रहे। इधर हम जब आते हैं तो इधर आपने कोई सेंटेंस ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ बोल दिया, उसका मीनिंग चेंज हो गया, लो वॉल्यूम के साथ बोल दिया, उसका मीनिंग चेंज हो गया, स्पीड ज्यादा कर दी, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, स्पीड स्लो कर दी, उससे भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रेस कर दिया, मीनिंग चेंज होगा सेंटेंस का, और प्रोनाउंसिएशन अगर आपने गलत की तो आपका अपना इमेज क्या बनेगा। ये बहुत सारी चीजें जो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ ओरल मैसेज के साथ चल रही हैं, लेकिन हैं ये सारी की सारी नॉन वर्बल। ओरल जरूर हैं लेकिन नॉन वर्बल। पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट टू सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू द एक्शंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यस शमरोज Yes, sir. जी, हमने हैंड रेज किया था No, sir. पहले से। जी सर, पहले से। चलिए, अनस। सर ये जो वर्ड की साउंड्स होती हैं वो पैरा लैंग्वेज में आती हैं? जी, देखिए ना, एक वर्ड है मिसाल के तौर पर माइक है ना, माइक जी क्या होता सर। है माइक? एक सुभान जिसमें अल्लाह, बोलते हैं। जिसमें बोलते हैं। अच्छा, वो माइक हो गया। अच्छा, अब पंजाबी वाले लोग, आमतौर पर पंजाबी लोग क्या कह रहे होते हैं माइक को? सुना कभी? ये शमरोज हाँ क्या सर। कह रहे होते लोग? मैक। मैक। अब देखें, अब मैक का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोग ये बोलते हैं, समझ भी हमें आ जाएगी कि किस चीज़ की बात हो रही है, ऐसी है ना। जी जी सर। सर। लेकिन ज़रा ये गौर करें कि अगर मैं आपको पढ़ाते हुए ये कहूँ कि अपना मैक ठीक करें, ज़रा मैक, समझ तो आपको मैसेज की आ गई, वो जो मीनिंग उस वर्ड का था वो तो आपने समझ लिया, लेकिन एक्स्ट्रा आपको ये समझ में आया कि यार ये टीचर की प्रोनाउंसिएशन इतनी देसी है कि नहीं, ये नहीं पता माइक क्या ना, ये मैक कह रहे हैं, मैक। क्या ख्याल है, ये मैसेज मिलेगा साथ या नहीं मिलेगा? जी सर मिलेगा। हाँ, तो ये जो होती है ना चीज़, ये पैरा लैंग्वेज में आ जाती है कि वर्ड्स के मीनिंग्स पे अगर आप जाएंगे ना, वो तो मीनिंग तो हमने समझ लिया कि किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन वो जो साथ हमने काम किया ना कि प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर दी तो ये नॉन वर्बल मैसेज भी साथ चला गया, ये ऐड हो गया। ठीक है। पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बनता है जहाँ लिखा ना ऊपर, पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू द एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज इट रिलेट्स टू समथिंग अदर देन द वर्ड्स देमसेल्व्स। तो वर्ड्स की बात यहाँ पे नहीं रहती, वर्ड्स के साथ जो हमारे ये वॉल्यूम, पिच और स्पीड और प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस, वोकल क्वालिटी, ये चीज़ें जो साथ ऐड होती हैं, इससे ये कह रहा है कि ये पैरा लैंग्वेज है और ये भी एक्सियम्स की तरह से ही है। अच्छा, एक्सियम्स में ही क्यों नहीं आ जाता, ये एक्सियम की तरह क्यों है? ये शमरोज, इसको हमने देखें, पीछे जो टॉपिक हमारा एक्सियम्स का चल रहा था, इधर आगे 1.5 करके पैरा लैंग्वेज को अलग कर दिया, उसी में क्यों नहीं डाला इसको पैरा लैंग्वेज? वो आपसे पूछने ही वाला था। सुभान अल्लाह। चलिए जी ओन से पूछ लेते हैं। ये सोन, सर क्योंकि पैरा लैंग्वेज सर पैरा लैंग्वेज टोटली नॉन वर्बल है, इसलिए। नहीं बेटा, नॉन वर्बल तो पीछे भी कितनी चीजें नॉन वर्बल गुजरी हैं। देखिए ना, जहाँ पे हमने सर रिलेशनशिप जो की ये बात की, चले उसामा से पूछ लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये जो पैरा लैंग्वेज है वो तो कम्युनिकेशन का कंपोनेंट होगा, और वो बेटा जो है component- एक्सियम्स हैं वो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट नहीं है। नहीं, ये भी कंपोनेंट में नहीं है। इसे हम कंपोनेंट तो नहीं उसका मानते। और ठीक। सोचे, ये कम्युनिकेशन के साथ साथ चलिए चलता है। मैं बताता हूँ। इसकी रीजन ये है कि पीछे जितने हमने पढ़े हैं ना, उनमें ये डिस्टिंक्शन नहीं थी कि बात इसमें ओरल की है या रिटन की है। इसमें जो है ना ये पैरा लैंग्वेज ये सिर्फ ओरल में आती है, रिटन में आती नहीं है। पीछे जितने भी है ना उसमें ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन के एक्शंस हैं या रिटन के हैं। एक्सियम्स जो है ना, जी। एक्सियम्स वो जो है वो या तो रिटर्न के होंगे या ये मुझे बता रहे हैं या अपने तौर पे पढ़ रहे हैं? चलिए, तो जब हम एक्सियम्स की बात करते हैं ना, एक्सियम्स ये डिस्टिंक्ट नहीं करते कि हम ओरल की बात कर रहे हैं या रिटन की बात कर रहे हैं, वो दोनों में ही यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ओरल की हो रही है, इस वजह से एक्सियम्स में इसको हम कंसिडर नहीं करते। एक्सियम्स वो हैं जो हर तरह की कम्युनिकेशन में साथ चल रहे होते हैं, ये सिर्फ ओरल के हैं। पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज जो होती है ये वोकल तो है, ताल्लुक इसका वॉइस के साथ है, लेकिन पैरा लैंग्वेज खुद जो है इसको हम ये नहीं कहते कि ये कोई वर्बल चीज बन गई। वर्बल नहीं है ये, क्योंकि वर्बल तो है वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स आप यूज करें उनके मीनिंग्स, जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं या इवन कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं वो भी इसमें। लेकिन जो वर्ड के साथ हम चीजें आवाज के उतार चढ़ाव की वजह से समझते हैं, वो सारी की सारी पैरा लैंग्वेज है। Variances in speed, tone, volume, voice, and stress on words can convey different meanings to the recipients in spite of using the same words. अब वर्ड्स तो आप वही यूज करेंगे, लेकिन स्पीड मीनिंग चेंज करेगी, टोन मीनिंग चेंज करेगी, वॉल्यूम ये भी मीनिंग चेंज करेगा। ये टोन से क्या मुराद है, ये कौन बताएगा? यस शमरोज, टोन क्या चीज है? ये भी आवाज ही होगी आई थिंक सर। सॉरी सर मैंने कहा ये भी आवाज ही होगी बेटा, आई आवाज थिंक तो सर। है, आवाज में तो ये सारी चीजें आवाज के साथ चल रही हैं, लेकिन टोन क्या चीज है? टोन सर बोलने का जो आपका स्टाइल है, वॉइस ज्यादा आवाज आपकी ऊंची है या नहीं वो तो बेटा कम फिर है, ये तो ज्यादा। वॉल्यूम में नहीं आएगा वो। सर तसलसल बोलने ये चलिए मैं लहजा होगा। अभी अभी देखते हैं ये हमारा सर लहजा क्या किस किस्म का लहजा। सर भी जैसे मतलब कि बिहेव करने का लहजा, बिहेव करने का लहजा होता है, या आपने नई मतलब डेफिनेशन कि बना दी आज? अच्छा मैं बताता हूँ आपको। टोन से ये मुराद है कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट लगे, ऑर्डर ना लगे। और अगर आप गुस्से में कोई बात किसी से कहते हैं तो वो गुस्से वाली टोन मौजूद हो, ये ना हो कि वो समझे पता नहीं कि मजाक कर रहा है, वो हंसता रहे आगे से। टोन इसने मैसेज को ही असल में या वीक कर देना है या स्ट्रॉन्ग बना देना है, क्योंकि ये नॉन वर्बल एलिमेंट है जो आपके वर्ड्स के साथ चल रहा है। ठीक है शमरोज? ओके सर। हाँ देखिए, आप क्वेश्चन पूछें। समटाइम्स क्लास में बच्चे पता क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं, हैंड रेज किया, अच्छा हम कहते हैं जी, वो बच्चा उठता है कोई बात करता है, हम कहते हैं जी ठीक है, वो कहता नहीं सर मैंने क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन लग ही नहीं रहा होता कि ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप क्वेश्चन पूछें तो वो लगे क्वेश्चन पूछा है, ये ना हो कि लगे कि आप कोई बात बता रहे हैं। देन वॉइस क्या चीज है इसमें? यस शमरोज। चलें आसिम महमूद। वॉइस मतलब आवाज।
सुभान अल्लाह, क्या मतलब है इससे आवाज से? उर्दू ट्रांसलेशन बेटा यहाँ पे हमारा काम नहीं है असल। वो तो ठीक है, चलो वॉइस को आपने आवाज कह दिया, आवाज का रोल क्या है पैरा लैंग्वेज में, यहाँ तो ये देखना हमें। सर क्लैरिटी, जी, क्लैरिटी, क्लैरिटी क्लैरिटी किस तरह की? मतलब सर समझ अगले क्लियरली आए। अच्छा, ये जो है ना वोकल, ये वॉइस जो होती है ये है सिर्फ वोकल क्वालिटी, वोकल क्वालिटी कि आवाज आपकी सुनने में कैसी लगती है। जैसे आप सुनते हैं जब ये आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, तो आपने देखा वो सारी फीमेल वॉइस में ही आपको मैसेज दिया जाता है। वो मेल क्यों नहीं, फीमेल्स की जो कि पिच होती है ना, पिच ज्यादा है, वो आवाज जो है ना वो बच्चों की और फीमेल्स की इनमें पिच ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ी सी आवाजें जो है ना ये मर्दों से बेहतर समझी जाती हैं। इस वजह से जब भी आप बात करें, एक तो हो गया मेल फीमेल, एक है मेल्स के अंदर ही एक आदमी की आवाज सुनने में अच्छी लगती है, एक की सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो वोकल क्वालिटी ने अपना रोल प्ले करना है साथ। लेकिन ये तो नेचुरल है। ये नेचुरली है, ये नेचुरल ही है, क्योंकि ये जो है ना वोकल क्वालिटी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका आप कर भी कुछ नहीं सकते, चलना इस वर्ड्स के साथ ही है। इसमें सिर्फ एक दो इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि अगर आपकी पिच बहुत लो है, तो अगर आप माइक पे बोल रहे हैं ना, तो उसे कहेंगे कि एको बिल्कुल बंद कर दे, फ्लैट कर दे बिल्कुल, ठीक है। एक इसके लिए ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि जब आपकी पिच इतनी लो हो तो ज़्यादा स्पीड पे ना बोलें, स्पीड कम कर लें अपनी वर्ड्स में, सेंटेंसेस में स्पेस ज़्यादा रखें, स्लो बोलें, उससे मैसेज आपका बेहतर हो जाएगा। वरना इसका आप कर कुछ नहीं सकते। बाकी स्पीच थेरेपिस्ट से कुछ आप अगर टिप्स ले लें, वो आपको टिप्स दे दें तो ठीक है, बाकी ये नेचुरल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, चलना इसके साथ ही। ऐसे ही ना आप देखें कई दफ़ा ये नात वगैरह आप सुनते हैं ना, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती, किसी की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती, अब उसका बेचारे क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो है ना किसी चीज़ की ट्यून जो बनाते हैं, वो तर्ज बनाते हैं, वो तो अपनी जगह पे, एक ही वो कलाम है, एक पढ़ने वाले का आपको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा पढ़ता है वो अच्छा नहीं लगता आपको। ये वोकल क्वालिटी अपना रोल प्ले कर रही होती है। एंड स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, वर्ड्स को आप स्ट्रेस भी करते हैं। आपने सेंटेंस को ही बोला, उसमें किसी वर्ड को स्ट्रेस कर दिया। जैसे ये कहना, देखिए यही सेंटेंस जो पैरा लैंग्वेज के नीचे लिखे हुए मैं इसमें पढ़ देता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ किसी एक वर्ड को मैं स्ट्रेस कर देता हूँ। देखिए पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब द वोकल यट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब दो वर्ड्स को मैंने स्ट्रेस किया, कौन कौन से थे जो स्ट्रेस किए? वोकल और नॉन वर्बल। वेरी गुड, वोकल और नॉन वर्बल। इसका मतलब है कि मैंने कोशिश की है कि इन दो वर्ड्स को हाईलाइट करके इनका मीनिंग आपको समझाया जाए। तो ये इस तरह से आप स्ट्रेस करके भी डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड्स। अब दो लोग जब वो बात करते हैं तो वर्ड्स वो सेम ही यूज करेंगे, लेकिन अगर इनमें कोई वेरिएंस आ गई, कोई डिफरेंस आया स्पीड, टोन, वॉल्यूम, वॉइस, स्ट्रेस में, तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। Then communication systems, the communication model, process of communication, ये मॉडल को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर कम्युनिकेशन मीडिया है, फिर यूनिवर्सल्स जो कि कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, वो देखने हैं क्या है। पहली चीज इसमें द कम्युनिकेशन मॉडल, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Was there are many different ways in which organizations can collect, share, and disseminate information. They are all based on the same underlying communication model as shown below. कि organizations किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, किस तरह शेयर करती हैं और डिसेमिनेट करती हैं, और are all based on the same underlying communication model. अब वो कम्युनिकेशन मॉडल एक ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं इन्हीं को ही फॉलो किया जा रहा होता है। इसमें फर्स्ट है, ये आप नंबर 1 पे देखेंगे, ये नंबर 1, जनरेट अ मैसेज। मैसेज एक जनरेट करे। अब मैसेज है क्या जो जनरेट करना है? बेसिकली आपका जो आइडिया होता है
वही आपका मैसेज है। क्योंकि जब हम किसी को कोई ओरल, रिटन या कोई भी नॉन वर्बल मैसेज देते हैं, बेसिकली तो वो आइडिया है जो आपके माइंड के अंदर, वो हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो कुछ उसके माइंड में है उस आइडिया को ट्रांसफर करे दूसरे के माइंड में। ये है अच्छी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मैसेज जनरेट किस तरह करते हैं कि सबसे पहले आप कोई आइडिया है माइंड के अंदर जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे ट्रांसमीटर इनकोड्स द मैसेज। ट्रांसमीटर मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड करना क्या है? आप है, सपोज आप बैठे किसी बात पे खुश हैं, अब वो खुशी किसी दूसरे आदमी तक कन्वे करना है इस मैसेज को कि आप खुश हैं। अब उसके कई वेज हैं। एक तो है कि आप बोल के उसे बताएं कि मैं खुश हूँ। दूसरा क्या है कि आप नॉन वर्बली कोई एक्ट जो करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चलने फिरने से लगता है कि आप बहुत खुश हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप रिटन मैसेज सेंड कर दें, आई एम वेरी हैप्पी, यानी ओरल वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, कोई एक्ट, या फिर समटाइम्स एक्ट की बजाय कुछ भी नहीं, सिर्फ साइलेंस, वो भी इनकोडिंग में आती है। तो इनकोडिंग क्या है? शेपिंग। ये शेप करना, वो जो मैसेज आपने जनरेट किया था, अब उसको शेप करें। शेप कैसे करेंगे? अपने उस आइडिया को आगे कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा। वो उसमें फिर हम माइंड के अंदर पहले सोच लेते हैं कि अब मैं ओरल मैसेज दूंगा या रिटन मैसेज दूंगा। कई दफ़ा ये होता है कि जो ओरल और रिटन, ओरल तो सिर्फ आपने सोचा होता है, वो इसका मतलब है कि आप इनकोड माइंड के अंदर उसको कर रहे हैं। रिटन जो होता है वो तो आप लिख के रखते हैं। तो ट्रांसमीटर, सेंडर, इनकोडर, ये सारी टर्म्स उस आदमी के लिए हैं जिसने मैसेज जनरेट करके आगे कन्वे करना है। उस डिसेमिनेशन के लिए पहले वो क्या करता है? मैसेज को इनकोड करता है। इनकोडिंग यानी शेपिंग द मैसेज। मैसेज माइंड के अंदर था, उसको शेप कर लिया रिटन में, ओरल में, या सोच लिया कि अभी मैंने चुप रहना है या कोई एक्ट करना है। एक्ट किस तरह से करते हैं? अगर आप खुश हैं, किसी को कुछ जैसा कोई चीज़ आपने भेज दी घरों में जैसा होता है, तो आपका रिजल्ट आया, कोई ईद का मौका है तो कोई डिशेज आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो ये एक्ट्स हैं आपके जो आपके मैसेज को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये होगी इनकोडिंग। फिर द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। जो आपने इनकोड कर लिया था उसको आपने आगे ट्रांसमिट कर दिया, शेयर कर दिया। वो ट्रांसमिशन से पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिटन मैसेज वो तो आपने लिख के रखा, वो इनकोडिंग हो गई। ओरल जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर ही अभी उसको इनकोड किया था, वो आप जब बोलेंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि जो ओरल मैसेज है उसकी आप प्रैक्टिस भी करते हैं। वो प्रैक्टिस तो एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन ये कि आपने सोच लिया कि मैंने ओरल मैसेज देना है। फिर इनकोडेड मैसेज इज रिसीव्ड। और जो मैसेज आपने इनकोड किया था वो आगे किसी ने रिसीव किया, क्योंकि आपने ट्रांसमिट किया। जब ट्रांसमिट करेंगे तो मैसेज इनकोड करके आपने आगे कन्वे कर दिया, तो आगे उसका रिसीवर होगा। फिर रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड करना है, क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर जो मैसेज जनरेट किया या जो वर्ड्स आपने लिख के उस तक कन्वे कर दिए, अब वो तो आपका एक अपना आइडिया था, अगले आदमी तक वो आइडिया आपने पहुंचाया। अब उसको उसकी क्या समझ आई? अब ये देखना है कि रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। आइडिया को आपने शेप दी, वो शेप पहुंच गई रिसीवर के पास। अब उसने उस शेप से फिर आइडिया बनाना है उसका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अच्छा कम्युनिकेटर वो है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, सक्सेसफुल कम्युनिकेटर वो है जो आइडिया उसने अपने माइंड में जनरेट किया था वही आइडिया वो आगे डिसेमिनेट करे। तो पता फिर चलेगा कि उसने वही आइडिया दूसरे माइंड में ट्रांसफर कर दिया या नहीं किया। मैसेज तो असल में वो आइडिया है। तो रिसीवर ने उसको डिकोड किया, उसने समझा उसको, फिर रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक। इस पे फिर रिसीवर फीडबैक देता है। फीडबैक, दो चीज़ें फीडबैक में होती हैं। एक तो ये है कि उसे मैसेज रिसीव हो गया, कॉन्फर्मेशन है कि पता चल जाए कि मैसेज मिला उसे। एक रिसीट होती है, जिस तरह रसीद मिल जाती है कि हमें ये चीज़ पहुंच गई। और दूसरा, उस फीडबैक में इस चीज़ का एलिमेंट होना ज़रूरी है कि मैंने आपका मैसेज समझ लिया है। देखें, एक है कि आपने ये व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखते हैं,
उस पर जब मैसेज किसी को आपने सेंड किया तो वो ब्लू टिक्स जब 2 लग जाते हैं आप कहते हैं मैसेज मेरा रिसीव हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया मैसेज रिसीव हो गया, क्या उसको मैसेज समझ में भी आ गया? देखिए आपने कहा कि आज शाम को हमने इकट्ठे बैठ के ये जो इश्यूज हैं ये डिस्कस करने हैं, ये चैप्टर है हमने ये इकट्ठे बैठ के पढ़ना है। अब आपने वो मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया, अब ब्लू टिक्स तो 2 लग गए लेकिन वो शाम को आया ही नहीं। आपने अगली सुबह फ़ोन किया कि यार मैंने तो आपसे कहा था, वो कहता कि वो तो आज का नहीं था टाइम। अब वो रिसीव तो उसने कर लिया लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई ये भी तो देखना है। इसलिए वो जो फीडबैक उसने देना है उसमें दोनों चीज़ें मौजूद हों। एक तो ये कि डेफिनेटली फीडबैक देगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा मैसेज से मिला या नहीं। दूसरा ये कि उसने मेरे मैसेज को समझा क्या है, क्या उसकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई या नहीं हुई, ये फीडबैक के अंदर चीज़ शामिल है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। सेंडर किसको कहते हैं मैंने तो आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ से भी देख लेते हैं, अभी आगे फिर इसको इन डिटेल भी इसने डिस्कस करना है। द सेंडर जनरेट्स अ मैसेज एंड सिलेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड। सेंडर मैसेज जनरेट करता है और जो बेहतरीन उसके लिए मेथड हो सकता है वो अडॉप्ट करता है। अब वो मेथड जो है ना याद रखें बेसिकली तो 2 ही हैं, एक को वर्बल कहते हैं एक को नॉन वर्बल कहते हैं, लेकिन उसी में से फिर वर्बल में आ जाता है कि ओरल है या रिटन है ये देखना, या फिर नॉन वर्बल में जब हम जाते हैं तो नॉन वर्बल में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप, कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं या साइलेंट रहते हैं या कोई पिक्चर सेंड करते हैं या क्या ग्राफ क्या चीज़ है वो, ये मेथड आपने खुद देखना है कि इनमें से किस तरह से आप मैसेज आगे कन्वे करेंगे। और अच्छा सेंडर उसे समझा जाता है जो रिसीवर को भी माइंड में रखे। एक तो ना मेथड, अब मेथड जो है ना वो असल में अपने लिए नहीं है, मेथड तो आपने अपने रिसीवर को देख के देना, चेक करना है कि आपका मेथड कौन सा होना चाहिए। देखें आप कहीं पे कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब उनके रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि आप रिटन एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करें, और आपने फ़ोन करके कह रहे हैं जी कि मैं क्वालिफाइड किस्म का फलां हूँ, प्रोफेशनल हूँ, आप मुझे कंसिडर करें। वो कहते हैं एप्लीकेशन, आप कहते हैं नहीं आप इसी पे कर लें। अब ये इसका मतलब है कि आपने सही मेथड चूज नहीं किया। सही मेथड कब होगा जब आप अपने रिसीवर को जब आप सामने रख के फिर सेलेक्ट करेंगे। तो अपने रिसीवर को जरूर देखें कि आपका रिसीवर उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के मुताबिक। आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि एक है नाइस टू हैव, एक है नीड टू हैव। एक नाइस टू हैव तो आपको अच्छा लगता है, नीड टू हैव उस कॉन्टेक्स्ट में जरूरत किसकी है, वो जरूरत देख के कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपके रिसीवर की डिमांड क्या है, उस डिमांड को उसके मुताबिक फुलफिल करना। फिर इनकोडिंग, द मैसेज इज देन इनकोडेड। अब सेंडर जो है मैसेज जनरेट कर लेता है और मेथड भी वो सोच लेता है कि किसमें करना है, फिर इनकोडिंग करता है। द मैसेज इज देन इनकोडेड, इनकोड करता है एंड ट्रांसमिटेड टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट नोन एज द रिसीवर। तो मैसेज को इनकोड करना वही शेप देता है उसे अपने आइडिया को, और वो आगे कन्वे कर देता है। रिसिपिएंट जिसे रिसीवर भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। रिसीवर डिकोडिंग, रिसीवर का काम क्या है, उसने डिकोड करना है। द रिसीवर डिकोड्स इंटरप्रेट्स द मैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इज अबाउट एंड व्हाट एक्शन इफ एनी इज रिक्वायर्ड। रिसीवर का काम क्या है कि वो डिकोड करे। डिकोड करना क्या है कि जैसा उसने शेप किया था अपने आइडिया को, अब उसने उन वर्ड्स को, उन एक्ट्स को, उसके साइलेंस को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा था इसके थ्रू, इसका आइडिया क्या है। तो उसे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिकोड करना है। The receiver decodes the message to understand what the message is about and what action, if any, is required. और अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है तो वो उसने देखना है कि वो क्या अब उसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि रिसीवर ने उसको समझना भी है, आगे रिसीट भी उसको देनी है और ये भी उसको शो करना है कि मुझे समझ आ गई, इसलिए वो पूरा समझ ले उसको। फिर उसके बाद क्या करे, फिर दे फीडबैक। The receiver then provides feedback to the original sender to show that they have received and understood the message. ये original sender इसने क्यों यहाँ पे कहा, sender को तो हमने sender पढ़ा था ऊपर, देखिए यहाँ पे sender लिखा हुआ है, यहाँ पे original sender उसने क्यों टर्म यूज की, full tell. Yes, Anas.
सर इसका मतलब जिसने भी ये ओरिजिनल यानी कि पिछले जहाँ से भी मैसेज आया उस तक मैसेज पहुंचाना। नहीं तो उसको सेंडर कह देता, ओरिजिनल सेंडर क्यों कहा? सर हो सकता है वो पीछे से उससे भी पीछे से किसी और ने सेंड किया। इतनी लंबी मैं चेन। बताऊं सर, शमरोज, क्योंकि अब ये खुद भी सेंडर बन चुका है। वेरी गुड। लेकिन जब फीडबैक ये दे रहा है तो मैसेज तो ये भी सेंड कर रहा है, फीडबैक भी तो एक मैसेज देना है ना आपने। तो जब आप मैसेज दे रहे हैं तो उसका मतलब सेंडर तो आप खुद भी बन गए। तो ओरिजिनल सेंडर कौन है शमरोज फिर? जो पहले वाला सर जी, जिसने मैसेज जनरेट करके इसको वेरी दिया गुड। था। जिसने मैसेज जनरेट किया है, जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, वो ओरिजिनल सेंडर, टू शो दैट दे हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। तो अब आपने फीडबैक क्या देना है कि आपने मैसेज रिसीव भी कर लिया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है। ये दोनों चीज़ों का फीडबैक होना ज़रूरी है। एक चीज़ का फीडबैक नहीं होगा कि बस मैसेज मिल गया। अब उसे ये भी बताना है कि आपने क्या मैसेज दिया है और मुझे क्या उसकी समझ आई है। आप देखेंगे जब ये ऑर्डर दिया जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसमें ये समझा जाता है कि अगर कोई कंपनी आपको ऑर्डर देती है, कोई इंडिविजुअल आपको ऑर्डर देता है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें अब आप उन्हें लेटर लिखें कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, और जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो थोड़ा सा आप उसको ब्रीफली रीस्टेट कर दें कि ये आपका मैसेज है। आपने अभी देखा होगा कभी कि रेस्टोरेंट्स में जाएं खाना खाने, तो वो जो वेटर आता है ना, जब वो आपका ऑर्डर नोट करता है, उसको नोट करने के बाद फिर वो रिपीट करता है। अब नोट क्यों कर रहा है? कि उसने आपका मैसेज रिसीव कर लिया। फीडबैक तो आपको मिल रहा है कि उसने बताया आपको कि आपने, वो लिख रहा होता है, एक तो आप उसको पता चला, एक है वो कहता है मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब उसे मिल गया मैसेज। अब वो रिपीट करेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि उसने कोई गलत ना लिख लिया हो, या जो आपने कहा है हो सा आपके कहने में कोई गलती हो गई हो। इससे करेक्शन भी हो जाती है। तो इसलिए ये मैसेज देना कि आपका मैसेज मिल भी गया है और मैंने समझ भी लिया है, और उस पर जो एक्शन आपका रिक्वायर्ड है वो हम, यानी आपने कहा कि ये फलां डेट तक आप इतनी बुक्स भेज दें या इतने टाइम में हमारा खाना बन जाए, अब ये चीज़ें उसने बता देनी कि हम इतनी देर में ये कर देंगे। ठीक है जी, सो फार सो गुड। आज के लिए इतने काफ़ी है। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो पूछ सकते हैं। सर जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि इसकी मतलब प्रेपरेशन कोई है एक्स्ट्रा बुक एमसीक्यूज वाली? हाँ जी, ये एमसीक्यू जो ना आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, कॉलेज में भी फोटोस्टैट वाले के पास रखवाए हुए हैं। कुछ आपका जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से भी करेंगे आप। कुछ क्वेश्चन मैं ना आपको सिर्फ, अब चूंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पढ़ ली हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दूंगा, कल लिखेंगे अब क्योंकि अब टाइम थोड़ा है। तो उसको ठीक भी है आप ना उसी वक्त फिर कल मुझे ना अटेम्प्ट करके आपने बताना है, ताकि ज़रा वो 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं कि किस तरह की वैरायटी क्वेश्चन की होती है। फिर कल फिर मैं इंशाल्लाह सर। आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। ये सर और ये कुछ? जो फोटोकॉपी वहां से लेने जो कॉलेज से, उनका क्या नाम वगैरह उन्हें बताना। उन्हें कहें कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन के आपको क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए 5 है। ठीक है सर। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम ओके वालेकुम। सर, अल्लाह हाफिज़।